Okay, how's everyone doing? Good morning, Shweta. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. How are you? I'm good. Yes, now I'm the co-host. Thank you. All right. Everyone here? Yes, ma'am. Great. So let me share my screen and let's do a quick review of what we did yesterday. So do you see my screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Great. Thank you so much. So what is it that we had been talking about, teachers? Different type of sensory play. Lovely. Thank you so much, Ruchi. Different types of sensory play. And we had also talked about that for the sensory play to happen, we need what kind of material? Real world, ma'am. Real world experience material. What is another word for Natural. that? Natural, ma'am. Sensory material. Sensory material. Yes, ma'am. Yes. Now, please give me example of, and rest everybody. Shweta, if you see somebody raising hand, I much appreciate Ruchi responding so nicely and so promptly. But we want everyone's participation. So if they raise Sure, their hands to respond, please keep a tab on them. sure. I request everyone to kindly switch on their videos because we can't see anyone, those who are sitting. Just one or two candidates have opened their videos. So it's a request to kindly open your videos so that Yeah, we can thank see you you so all. much. So we talked about sensory material. Can somebody give me uh, what is sensory material? What kind of materials can we use for sensory play? Lakshmi, Real world, real world. give me the name. Give me the name. Name of the materials. Name of the objects and things that are the part of sensory materials. The pebbles, sand, dry Lovely. leaves. So it is natural material Yes, ma'am. Yes, ma'am. which is available in nature, Nature. Yes. like pebbles. Yes. What else Sand. did you say, Lakshmi? Soil and sand. Yes, water, water also, Yes, then ma'am. stones, and then Ruchi also said, and Lakshmi also said, the real world material, real Yes. life Yes. objects. And real life objects could be Sensory material. We can use grain, ma'am. Grain, spices, lovely. Thank you, Ruchi. flour. Yes, flour is again a natural material, Yes, grain, ma'am. rice, pulses, Yes. dalia, Spice. eatables, edibles, Yes, ma'am. right? Yes. All these are the part of the sensory Yes. materials. Gond Katira, ma'am. Yes, thank you, Arpita. And we can use all these sensory materials for different types of sensory play. Can you tell me that one activity for each of the sensory play? So for tactile play, what were the activities we talked about? Sensory bin activities. Yes, ma'am. Yes, yes, Yes. ma'am. So what do you see here? There is a tray with the sand in it. Yes, Pebbles, ma'am. Water. Yes. wood, water, There is some clay. There are some
Hoop, stones, scoops. sand. Yes. Yes. Good. Right. And what has the teacher planned here for this tactile play? Can you see? She has planned that children could either sort by size or texture, or Yes. they can create forest scene, or they can use magnifying glasses to closely explore the things in the nature. Right? Yes, So ma'am. every week we can plan a different sensory bin activity. Sometime it could be on Monday, when the children enter the school, you take them out to the garden, you set up the sand tray for them, and you put a kind of activity task कि आज हमें यहाँ पर जितने भी इस सैंड में आपको जितने भी ये पेबल्स हैं इनको साइज से अरेंज करना है। किसी दिन आप उन्हें बोल सकते हैं कि हम आपको एक फॉरेस्ट सीन बनाना है। राइट। सो बच्चे लूज पार्ट थ्योरी, हमने कल बात करी थी लूज पार्ट थ्योरी, और आपने ये सारे मटेरियल जो यहाँ पर डिस्प्ले हुए हैं वो आपने छोटे छोटे बिन्स में इकट्ठे करके रखे हुए हैं ताकि बच्चे उनको इजीली यूज कर लें। पेबल्स होंगे, घास होगी, पत्तियां होंगी, वो जाके लेके भी आ सकते हैं पर वो अवेलेबल भी हो सकती हैं। और बच्चे उनको बटन्स हो सकते हैं, रिबन्स हो सकते हैं, पुरानी दुपट्टे, चुन्नियां, आप सब उनके लिए। आपका जॉब ये है कि आप उस एक्टिविटी को, सेंसरी प्ले की, कैसे वो मटेरियल बच्चों के लिए अवेलेबल कराते हो। एंड आई बी गिविंग देम द इंस्ट्रक्शन that what you have to do. Are we giving them a task? Yes, ma'am. Yes. So we can give them a task, but the task has to be open-ended or it has to be an instruction. It's a instructions. Open-ended. Okay. Lakshmi says instruction. Ruchi says open-ended. Arpita, Purnima, what do you think? It has to be open-ended or Open-ended, ma'am. step-by-step instruction? Open-ended, ma'am. Open-ended, ma'am. Okay. Purnima and Arpita, why it should be open-ended? मैम स्टूडेंट्स फ्री है मैम, जैसे हमने इतनी सारी थिंग्स उनको दिए हैं तो वो फ्री हैं, वो कैसा प्ले करते हैं उस टाइम मैम। Yes. हाँ वो अगर हम Right, उन्हें sir. सॉर्टिंग भी करने को बोलें तो वो डिफरेंट कैटेगरीज बना सकते हैं। राइट। एक है कि आप उनको बता दें कि आप साइज से बनाइए, एक आप टेक्सचर से बनवाइए, और एक हो सकता है कि आप उनको फ्री बोलें कि आप इनको ग्रुप्स में डालो, इनकी ग्रुपिंग करो। राइट। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की। एक हो सकता है कि आप उन्हें बोलें कि जितना भी मटेरियल अवेलेबल है, ये एक छोटा सा हॉर्स मैंने यहाँ पर रखा है, हमको सबको मिलके टीम्स में इस हॉर्स के लिए घर बनाना है। तो बच्चा उसमें से कोई भी लूज पार्ट यूज करके, डंडियां, पेपर, वुडन, कार्डबोर्ड्स, पुराने गत्ते यूज करके उस घोड़े के लिए घर बना सकता है। तो द चॉइस इज विद यू टीचर्स, बट इसमें आपको इतना अलाउ करना चाहिए दैट बच्चे हैव देयर, व्हाट डू वी वांट टू गिव टू चिल्ड्रन, देयर ऑन टाइम। own time, Experience. Shubhu, and voice and choice. Choice. Yes, ma'am. Voice and choice. They can decide कि घोड़े का घर कैसा होगा। अगर वो पर्दे भी लगाना चाहता है, it's okay if he wants to put a पर्दे, because it's all about imaginative play, isn't it? Yes, Yes, ma'am. ma'am. All right. Now look at the next sensory play activity. Here, what are the ideas? You can plant seeds and observe growth. You can sort seeds and count. You can ask the children, मॉर्निंग में बच्चे आते हैं, अब मॉर्निंग में जैसे ही वो आपके गेट से एंटर करते हैं, यू कैन प्लान सेंसरी प्ले एक्टिविटीज इन द गार्डन बिफोर दे गो टू द क्लास, सो दैट जो उनकी सेपरेशन एंजाइटी है वो कम होए, और आप उनको शुरुआत में ही उनको ये फ्री प्ले एक्टिविटीज, सेंसरी प्ले एक्टिविटीज दे।
इससे क्या होता है, बच्चों की जितनी भी घर की एंजाइटीज होती हैं, बच्चों के जितने भी मूड स्विंग्स होते हैं, वो सारे चैनलाइज हो जाते हैं, क्योंकि आपने प्लान किया एक्टिविटी पर बच्चे को भी अपनी एक स्पेस मिल रही है, राइट? So Yes, I ma'am. would always recommend that as an early years teacher, sensory play should be the part of your morning routine. Please note it down, teachers. So the moment आपके गेट पे आप बच्चों को ग्रीट करते हो, you can say, oh, today is Monday. We are going to have a very nice sand play. Please go to the sand play area. Today is Tuesday. We are going to have a water play area. Today is Wednesday. We are going to have a discovery challenge, right? And you give them all the material, they're free to create anything of their choice, right? Yes, ma'am. Now, look at the other thing. Again, you could give them all these materials, pattiyan that you see on the screen, और बच्चा अपना ही एक सीन क्रिएट कर रहा है. बट द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज दैट जब बच्चे ने ये ग्रुप में किया या अकेले किया, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मूव अराउंड विद योर पेपर एंड पेन एंड आस्क, ओके शुभू, व्हाट आर यू मेकिंग? So Shubhu asks Ruchi, okay Ruchi, what are you making? It looks so beautiful. And Ruchi says, मैं अपना हैप्पी बर्थडे का केक बना रहा हूँ, right? And somebody says, मैं अपनी मम्मा का किचन में चपाती बना रही हूँ, right? But you write down their imagination. This is very important as per National Education Policy. हम next sessions में we will start talking about assessments, observations. And this is what is evidence of learning. इसे क्या बोलते हैं teachers? Evidence of learning. और आप क्या कर रहे हैं? आप observations कर रहे हैं. Right? You keep noting down. Write down, take out a class list. Shubhu, create a table, box, write down. Morning activity, sand play. Shubhu made a beautiful घोड़े का घर. Arpita made a chapati in the kitchen. She said she wants to give it to her mother. Right? और अगर आप कोई प्लान्ड एक्टिविटी कराना चाहते हैं, बट आप उनको एक फ्री ढंग से कराना चाहते हैं, नॉट ड्यूरिंग द मॉर्निंग रूटीन और मे बी सम अदर टाइम, जो कि एक स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटी आप देखना चाहते हैं कि बच्चे किस तरह की सॉर्टिंग कर पा रहे हैं, तो भी आप उनको एक टास्क दे सकते हैं. ऑल राइट, आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू पुट इट in different groups based on their shape, based on their big to small, small pebbles, big pebbles together. Can you do that for me? And the children do it. So you give them two different boxes जिसमें वो small और big pebbles को रख सकते हैं. So that is a structured sensory play. But you want to find out how much the children are able to sort. Okay, as per your criteria. So आपका ऑब्जेक्टिव डिफरेंट हो सकता है एज अ टीचर. मॉर्निंग रूटीन में इट इज मोर फ्री एक्सप्लोरेशन. आप बच्चों की इमेजिनेशन, क्यूरोसिटी और लैंग्वेज करना चाह रहे हैं. बट ओवर द टाइम आफ्टर द से परहैप्स योर लिटरेसी और न्यूमरेसी क्लास, आप चाहते हैं कि मैं अब देखूं क्या ये बच्चे बिग और स्मॉल कर सकते हैं अरेंज के नहीं. रादर देन गिविंग जस्ट अ टास्क शीट, एक वर्कशीट देने के बजाय जिसमें वो आपने एक कॉलम बना दिया और बच्चे फेविकॉल लगा के चीजें लगा रहे हैं, इट वुड बी गुड दैट यू गिव देम दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी. बिकॉज इससे अगेन एंड अगेन जब वो कर रहे हैं तो वो सिर्फ सॉर्टिंग नहीं कर रहे हैं, वो डिफरेंट मटेरियल्स को एक्सपीरियंस कर रहे हैं और इमेजिनेशन बढ़ती जा रही है, राइट? Because we don't have to only teach, we have to work on the development of our children, developmental domains. Okay, so you understand the logic. Yes, Then ma'am. again, if you want to see that, emotional intelligence,
how do children understand? We are doing a theme of family, and you give children that, okay, fine, these are the material. Let's make a house for our family, right? What would you like to choose? Go choose. बच्चे अपने दुपट्टे लेके आते हैं, साड़ियां लेके आते हैं, स्टिक्स लेके आते हैं, उनसे घर बनाते हैं, कैंप बनाते हैं, राइट? आप उसकी कौन सी शेप, वुड यू लाइक टू ड्रॉ द पिक्चर ऑफ द हाउस? तो पहले बच्चा पिक्चर भी ड्रॉ करता है, right? So all these experiences can be built with sensory play with an objective. आप objective अपने mind में रख सकते हैं, okay? So we also talked about the loose part theory, जो कि आपने इसमें भी देखा, जब हम उनको material दे सकते हैं और वो अपने आप choose करें कि वो उससे क्या और कैसे बनाना चाहते हैं, for critical thinking and problem solving, right? Use 5 sticks to make a tower. Make a bridge using the materials in the tray. Okay? Help James to pluck the sugar cane. उसके लिए सीढ़ियां बनाओ using some material. तो बच्चे लैडर बना सकते हैं यूजिंग आइसक्रीम स्टिक्स, यूजिंग स्टिक्स, राइट? अगर जेम्स एलिफेंट अगर गन्ना नहीं तोड़ पा रहा है, वो बहुत ऊपर हाइट में है, तो आप उसको लिए क्या बनाओगे? कोई बोलेगा मैं टेबल बनाऊंगा, कोई बोलेगा मैं चेयर बनाऊंगा, कोई बोलेगा मैं लैडर बनाऊंगा. एवरीबडी हैज डन अ प्रॉब्लम सॉल्विंग, राइट? सो यू टेल देम ओके फाइन, ग्रेट जॉब, आप सब जाओ मटेरियल कलेक्ट करो और सब एक टेबल और चेयर बनाएंगे. जो आपको बनाना है बनाओ, सो दैट वी कैन हेल्प जेम्स. सो व्हाट डिड यू डू? You give them a real world problem to solve, and they gave you their solutions. Making sense, teachers? Yes, ma'am. Now this is nature discovery. I want all of you to look at this text written here, right? So there is leaves, stones, and can you see what is written? Explore what you find in nature. What lives near the water? What happens? क्या हम बच्चों को बता रहे हैं कि डक रहती है पानी में, क्रोकोडाइल रहता है? नो, वी आर आस्किंग देम. आपको क्या लगता है कौन कौन रहता होगा? कौन एनिमल्स रहते होंगे या ह्यूमन बींग्स रहते होंगे? कौन कौन रहते होंगे पानी के पास? आप क्या उनको बनाना चाहोगे? वुड यू लाइक, कैसे बनाना चाहोगे? मिट्टी से, क्ले से, या ड्रॉ करना चाहोगे? Right? So you give them stuff and then they draw or they create. They create a duck, they make a crocodile, they make a hippopotamus, right? So your questions have to be open-ended so that you try to get from children. उनको प्रीवियस नॉलेज उनकी क्या है वो आप समझ सको. सो टुडे टीचर्स, वी आर गोइंग टू टॉक मोर अबाउट दीज प्रॉम्प्ट्स. अभी आप लोगों ने मुझे बताया कि मैम हमारे जो भी टास्क हम प्लान कर सकते हैं, पर जो हमने उनके लिए टास्क प्लान करना है वो इतना ओपन एंडेड जरूर होना चाहिए कि हम उनसे एलिसिट करा सकें उनकी इमेजिनेशन, उनकी क्यूरोसिटी, राइट? So these are some of the questions. Rather than saying आपको इसमें बतख दिख रही है, आपको दिख रहा है कि इसके अंदर क्रोकोडाइल है, can we ask them, what do you notice? How does it feel in your hand? इस पानी में जब आपने मिट्टी में पानी डाला क्या चेंज हुआ? हमने कल बात करी थी इसके बारे में. Yes, Can you ma'am. find another way to use Ruchi, you made the cornflower slurry? क्या आप एक और तरीका सोच सकते हो? कॉर्नफ्लावर स्लरी को हम और किस तरह से यूज कर सकते हैं? ग्लू की तरह यूज कर सकते हैं, है ना? Yes, What ma'am. does this remind you? Memory, recall. This reminds me of the chewing gum I eat. This reminds me of marshmallows. So avoid directing outcomes. Observe first. जो आप उनसे सुनना चाहते हैं उसकी तरफ डायरेक्ट क्वेश्चन मत पूछिए, पहले वो ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछिए
जिससे आप ऑब्जर्व कर सकें कि उनके थॉट प्रोसेस में क्या थिंकिंग चल रही है, राइट? सो लक्ष्मी सेड डायरेक्ट, शी वॉज नॉट रॉन्ग। अगर आप बच्चों का, आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि मुझे आज देखना है कि बच्चों को पता है कि कौन से एनिमल्स वाटर के पास रहते हैं, तो वो उनको बोल सकती है सॉर्ट द एनिमल्स दैट लिव नियर वाटर एंड पुट देम इन बॉक्स 1 and put the animals that live on land in the box 2. So depending upon your objective, आप अपनी इंस्ट्रक्शन को प्लान कर सकते हो. बट रुचि, अर्पिता एंड शुभू वर ऑल्सो राइट when they said that we have to ask open ended questions, ताकि हम पहले बच्चों की थिंकिंग को समझ सकें कि what are their imagination, what do they already know about, right? Yes, ma'am. Making sense? Yes, So ma'am. please look at the question. Create something using what you see. क्या मैंने उनको बताया आपको क्या बनाना है? नहीं, मैंने बोला No. ये सारे मटेरियल आपकी ट्रे में पड़े हैं, आप इन सब से कुछ चीज बनाइए. अगर मैं थोड़ा सा क्रिटिकल थिंकिंग चेक करना चाहती हूँ तो आई कैन से, ओके, रुचि एंड अर्पिता, quickly look at the material in the tray. Are you all able to see the material in this tray? Yes, ma'am. Clearly now, can you see? Yeah. Okay. So what all do you see here? Mushroom, Ma'am, Very sunflower. nice. Sunflower, Flower. some beans or grams, ma'am. Yes. Nuts, Very good. few pebbles, Yes. Some jars. some twigs also. Yeah. So let's do an activity. Are you ready, everyone? yes, ma'am. Yes, ma'am. So those who have not turned on the video, I would request all of you, please look at the material or take a picture of all the material that is there on this tray. ध्यान से इसको देख लीजिए या फिर इसकी अपने फोन पे एक फोटो खींच लीजिए, because I will stop sharing the screen now. So now all of you, I will divide you into teams. And all of you have to sort of create something out of it, right? So Arpita and Anita Ashok, you are in one team. Okay? आप Okay, ma'am. दोनों ने मिलकर एक इस सामान को यूज करके एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाना है, ठीक है? Okay, ma'am. एंड रुचि शर्मा एंड लक्ष्मी, आप दोनों ने इस सामान को यूज करके एक चीज बनानी है विच इज अ यूटिलिटी आइटम, जिसे हम यूज कर सकते हैं. ओके? Okay, ma'am. It could be used for some purpose, used for Sure. eating, used for playing, anything, but it should Yes, have some ma'am. use. Sure. Okay? Shweta, are you there? Shweta and Pratibha, are you there? No, they're not there. Kuldeep, are you there? Yes, Okay. ma'am. All right. So Kuldeep and Jeenat, are you there? Yes. Kuldeep and Jeenat, you can create anything of your choice using the material in the tray. Tell me something, teachers. अगर मैं आप लोगों को अभी ग्रुप्स में डाल दूं, do you know how to go to different breakout zones? Sorry, ma'am. Repetition. Yeah, ma'am. यानी ब्रेकआउट पानी रूम्स मतलब मैं आपको यहाँ पर एरियाज बनाऊंगी और आपको उन ब्रेकआउट all रूम्स के अंदर असाइन कर दूंगी. piece of something small, flat, very thin
piece of ओके something. ओके, वेट टीचर्स, मैं अभी आपको ब्रेकआउट रूम्स ट्राई करने की कोशिश कर रही हूँ. सो टेल मी द नेम, कौन कौन पार्टनर्स थे? अनीता किसके साथ पार्टनर थी? अर्पिता, I think. मैम, अर्पिता. अर्पिता, यस मैम। अर्पिता त्रिवेदी. अनीता और अर्पिता त्रिवेदी, आपको एक रूम 2 असाइन कर रही हो. आप उस रूम 2 में जाएंगे और आपस में डिस्कस कर पाएंगे. आपको अभी मैं नोटिफिकेशन, आपको आ गया होगा, देखिए आया ना? Weather condition for a long time. यस. Really is a condition for a long time. Example. एक छोटा सा फ्लैट होता है, फ्लैट मीन्स फ्लैट लैंड जैसा, उसको बोलते हैं. ठीक है. ओके. यानी अर्पिता एंड अनीता, आर यू स्टिल हियर? आज मेरी मैम ने ये करवाया है. Please mute yourself, teachers. Only Arpita and Anita, are you here or are you in the breakout rooms? I think they have gone to the breakout room. Let me close all rooms. అక్కడ కూడా Please mute yourself, teachers. There's a lot of background noise. Arpita and I think Anita had joined the breakout room. Okay, perfect. Have we been able to create something? Ruchi and Lakshmi, Zeenat and Kuldeep, were you able to create something? Yes, ma'am. Okay. Let's also wait for them. Zeenat and Kuldeep ji, you were partner. Arpita, you came back from the breakout room? यस मैम, यस मैम, Were you able to talk to each other in the breakout room? यस मैम, यस, Did you like the idea of breakout room? यस मैम। Yes, good. So we will try to, this is how you can create groups when you're doing online teaching. तो आप दोनों को मैंने एक ब्रेकआउट रूम में डाला था ताकि आप अपने आइडियाज डिस्कस कर सकें एक दूसरे. वहां पे बाकी सब नहीं थे. और अब आप वापस, मैंने वो रूम क्लोज कर दिया तो आप मेन सेशन में आ गए हैं. और आप सबसे पहले आप दोनों अपने आइडिया बताइए, आपने क्या सोचा, सबको बताइए. मैम, हमने जो खलबट्टा है, माम दस्ता है, उसमें हम कुछ पेबल्स या उसको भी ऐसे करके मैम साउंड क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि हमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाना है. तो उससे रिलेटेड यही हमारे माइंड में आ रहा था, अगर हम पेबल्स भी डालते हैं तो उससे साउंड क्रिएट कर सकते हैं मैम. इतना ज्यादा हम कर नहीं पाए, बस इतना ही हो पाया मैम डिस्कस. नो, जो आइडिया. गुड, वेरी गुड. अनीता, आपका भी सेम आइडिया अर्पिता से? यस मैम, सेम मैम. अनीता, यू आर ऑन म्यूट. मैम, मुझे लगा ना कि अगर नट्स उसमें अगर कुछ डब्बे वगैरह कुछ रहते थे तो हम उसमें पेबल्स या नट्स को डाल के मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के जैसे बजा सकते थे, जैसे हम बच्चों को छोटेपन में झुनझुन्ने टाइप का बना के देते थे, तो वो कर सकते थे. बट वो वैसा कुछ मुझे दिखा नहीं, तो मैंने बोला मैम को कि खलबट्टी जो होता है इमाम दस्ता, उसको अगर हम ऐसे ऐसे आवाज करेंगे, इट मेक अ साउंड, मतलब जैसे अगर हम उसके ऊपर भी करें या अंदर भी करें तो एक साउंड क्रिएट होता है. तो ओके, इसलिए मुझे ऐसा लगा, आई थिंक सो. very good idea. Let's give them a round of applause. Very good critical thinking. Very nice. Very good critical thinking and problem solving. Very good. थैंक यू Okay, मैम. Ruchi and Lakshmi. Yes, ma'am.
आप लोगों ने क्या सोचा? यू डिडंट कुडंट वर्क एज अ टीम, आप लोगों को मैं रूम में नहीं डाल पाई थी, बट व्हाट आर योर आइडियाज? व्हाट वर यू सपोज टू डू? आपको क्या टास्क दिया गया था? Some eatable item we need to prepare. हम्म Not ma'am, not यूटिलिटी आइटम, eatable. Usable. यूजेबल यूटिलिटी आइटम. Yes, Utility ma'am. item. Yeah. So what did you think of? Yes, Ruchi. Ma'am, we can use pebble as a paperweight. We Hmm. can use twigs as a chopstick. We just clean them and use them as a chopstick. And I have another idea. Yeah. By using twigs, we can make binoculars. Gulel, ma'am. Gulel बना सकते हैं हम. Gulel is catapult. Yeah, yes, Binoculars ma'am. are your. Yes, ma'am. There's a gulel. Two different things. Yeah. Yes, ma'am. Okay. Good, 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 good. Very good. And what did you think, Lakshmi? Actually, there is a sound. I confused. I prepared my own way. Like You in that, prepared what? my own way eatable item I prepared. I thought that there is three jars are there. Inside of the jar, honey, butter was there, and I prepared a French toast like that. Oh, eatable item like a French toast. Lovely. Very nice idea. Brilliant critical thinking. Very nice. Kuldeep ji and Jeenat, are you there? Yes, ma'am. Yes. Would you like to share your idea? What did you make? Yes, ma'am. I make. जी जी बोलिए. Hmm. I didn't hear ma'am properly. At the time some phone came, No so I did. worries. No worries. It's okay. It's okay, Kuldeep. I appreciate your being here. Okay. Zeenat, please share your idea. यस मैम. आई मेक गिटार मैम. जैसे कि वो Oh, स्टिक थे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट गिटार. और वो पेबल से मैंने गिटार बनाया और स्टिक्स मैंने कनेक्ट किए. तो जैसे कि स्टिक्स बीच में से कनेक्ट करते हैं, तो स्टिक्स को हम लोग जब वाइब्रेट करेंगे तो उसमें से साउंड सुनाई देगा. oh, नॉट एग्जैक्टली lovely. मैम, बट थोड़ा सा तो आएगा. Lovely. Very nice. Very nice. Great critical thinking and great problem solving and great creativity. Everyone. Do you think आपको लगता है कि ये डुएबल है, बच्चे भी कर सकते हैं? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, हम ma'am. इसमें क्या परफेक्शन ढूंढ रहे हैं या हम सिर्फ इसमें एक एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम ढूंढ रहे हैं? Ma'am, ability to solve problem. Ability to generate question and not. यस, बिकॉज अगर आप इस इंस्ट्रक्शन को, इस टास्क को अगर आप एनालाइज करें टीचर्स, सबसे पहले आपकी इंस्ट्रक्शन को समझना, दैट इज अ ग्रेट स्किल ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ कॉम्प्रिहेंशन. किसी की बात को, किसी के क्वेश्चन को समझने के लिए पहले आपको कौन सी स्किल करनी पड़ी है ब्रेन में प्रोसेस करने के लिए? कॉम्प्रिहेंड करना, कि मुझे समझ में आ रहा है कि करना क्या है. सेकेंड Yes, ma'am. स्टेप है आपको अपने दिमाग में पॉसिबल सॉल्यूशंस ढूंढना, राइट? डिसीजन मेकिंग कि मैं गिटार बनाऊंगी. लाइक लक्ष्मी सेड, ओ मैम आई थॉट यू सेड समथिंग लाइक eatable. Nothing wrong. It's all right. I mean, she couldn't hear me, but she made something, right? And fourth thing is your ability to create something, right? Which is also higher order thinking, right? Yes, ma'am. कि कौन सी चीज, लाइक यू सेड रुचि दैट मैं उसको चॉपस्टिक्स की तरह यूज कर सकती हूँ. मैं, आपने क्या किया? यू ट्राई टू फाइंड आउट, यू डिड डाइवर्जेंट थिंकिंग. इसे हम बोलते हैं डाइवर्जेंट. जब आप डाइवर्स आइडियाज सोचते हैं, सिंगल प्रॉब्लम से लेकर आप मल्टीपल डाइवर्ट सॉल्यूशन ढूंढते हैं, तो उसे बोलते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग. और कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होती है? जब बहुत सारे हमारे पास आइडियाज हैं, उनको मिलाकर हम एक सॉल्यूशन ढूंढते हैं, या फिर हम एक आइडिया से मल्टीपल सॉल्यूशंस ढूंढते हैं. दैट इज
again a part of a thinking skill, divergent thinking, convergent thinking. All right? Yes, ma'am. आपने मल्टीपल स्किल्स यूज करी इस टास्क को करने के लिए, और जब मैंने आपको टीम में डाला, आई थिंक अनीता, नो, अर्पिता एंड अनीता, राइट? सो उन्होंने पहले एक आइडिया सोचा, फिर उन्होंने बोला अरे कोई बिन तो नजर आ नहीं रहा, तो शेकर कैसे बनाए, राइट? तो फर्स्ट हाइपोथेसिस, फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडिया नहीं चला, फिर दोनों ने डिस्कस किया, अनीता ने कुछ सजेस्ट किया, अर्पिता ने माना, राइट? सो देयर वाज कम्युनिकेशन, देयर वाज कंसेंसस। कंसेंसस मींस जब हम एक दूसरे की बात को मान जाएं, राइट? सो देयर वाज कंसेंसस, right? Disagreement, agreement. So all the important social skills, thinking skills, communication skills were used in this one single task and activity, right? And Yes, ma'am. without teacher taking the charge, teacher का काम 99.9% should be very sharp planning. जब आपकी प्लानिंग शार्प होती है, मुझे क्या करवाना है, क्या मटेरियल अवेलेबल कराया है, मैं बच्चों से कैसे इसको एलिसिट कराऊंगी, तो आपको उस वक्त बच्चों के साथ सिर्फ पीछे से रहना होता है, जा जाकर उनको करवाना नहीं होता। और एक अच्छी टीचर, एक अच्छी इंक्वायरी टीचर वही होती है जो कि बोलती कम है और एलिसिट ज्यादा कराती है। ओके? आइडियल रेशियो इन द क्लासरूम, एक अच्छा इंक्वायरी क्लासरूम कौन सा होता है जिसमें बच्चे 60% बोले और टीचर 40% बोले? ओके 60-40 का हम रेशियो बोलते हैं। इट शुड बी 60% स्टूडेंट लेड एंड 40% टीचर लेड, बट 100% टीचर प्लान्ड, right? So just think about this, that as women, as a ladies of the, as homemakers, आपकी तैयारी कितनी प्रिम एंड प्रॉपर होती है? ब्रेकफास्ट में ये बनेगा, डोसा बनेगा, अच्छा रात को बैटर मंगाना है, सुबह दाल भिगो के रखनी है, चॉपिंग करा के रखनी है, राइट? अच्छा अगर इडली नहीं गली, चलो फटाफट से प्लेन डोसा बना लेंगे। आप प्रॉब्लम सॉल्विंग करते रहते हैं। वी वुमेन आर वेरी वेरी गुड एट प्रॉब्लम सॉल्विंग, कांस्टेंट प्लानिंग, कांस्टेंट प्लानिंग। उसी तरह से एज टीचर्स, कांस्टेंट प्लानिंग, प्लान 1, प्लान 2। मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मुझे सॉर्टिंग देखनी है, मेरा ऑब्जेक्टिव है इमेजिनेशन ऑब्जर्व करनी है, आज मेरा ऑब्जेक्टिव है क्रिटिकल थिंकिंग को फोकस में रखना है, आज मेरा ऑब्जेक्टिव है सोशल इमोशनल क्वालिटी सर्कल टाइम करना है, राइट? कल ट्यूसडे को मेरा ऑब्जेक्टिव है मुझे वाटर सेंसरी प्ले करना है, राइट? वेनसडे को मुझे सेंसरी प्ले करना है सैंड में, पर मैं बच्चों को पैटर्न्स क्रिएट करवाऊंगी, डंडियां दूंगी और बोलूंगी सी व्हाट पैटर्न्स कैन यू क्रिएट, राइट? और मैं उसमें बताऊंगी नहीं, later when we come down, oh do you know what is this, is it straight? No, it is zigzag, 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 right? Is it curvy? Curve, up down, up down, up down। पर पहले मैंने उनको एक्सप्लोर करने दिया। मेकिंग सेंस टीचर्स? Yes, ma'am. yes ma'am All right, so coming back to our next part, I'll share my screen again. Can you see my screen? Now, ma'am. we are coming to another important aspect of sensory play, which was about vestibular and proprioceptive system, right? हम बहुत बात कर रहे थे फिजिकल डेवलपमेंट की। एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंटल डोमेन है, क्योंकि बच्चे ग्रो कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली, उनका फिजिकल डेवलपमेंट बहुत स्ट्रांग हो रहा है, हाइट बढ़ रही है, वेट बढ़ रहा है,
राइट? ब्रेन डेवलपमेंट भी हो रहा है। सेंसरी प्ले रियली रिसर्च, बहुत रिसर्च है इसको सपोर्ट करने के लिए, कंफर्म करने के लिए कि जब आप सेंसरी प्ले कराते हैं बच्चों का, लेफ्ट ब्रेन डेवलपमेंट हो रहा है। यू नो देयर आर टू हेमिस्फेयर्स ऑफ ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन कुछ फंक्शंस को ध्यान रखती है, राइट ब्रेन कुछ फंक्शंस को ध्यान रखती है। और जब हम सेंसरी प्ले की तरफ जाते हैं तो होल ब्रेन, जो हमारी ट्रायून ब्रेन है, वो स्टिमुलेट होती है। और जब हम सिर्फ नंबर लर्निंग कराते हैं, रोट लर्निंग कराते हैं, तो बेसिकली हमारा ब्रेन डेवलपमेंट ज्यादा नहीं हो पाता है, राइट? या फिर एक पार्ट ऑफ ब्रेन डेवलप होता है। बट जब हम सेंसरी के प्ले को यूज करके लर्निंग कराते हैं, दैट इट्स अ होल ब्रेन डेवलपमेंट, लेफ्ट एंड राइट। ओके? और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सेंसरी प्ले के अंदर स्पेशियल अवेयरनेस, राइट? सो यू नो दैट चिल्ड्रन डोंट हैव डेक्सटैरिटी। डेक्सटैरिटी क्या होती है? किस चीज को कैसे यूज करना है, कहाँ से पकड़ना है। आपने देखा है, जब बच्चे छोटे होते हैं दोनों हाथ यूज करते हैं, उनकी डेक्सटैरिटी नहीं फिक्स्ड होती है कि लेफ्ट हैंड यूज करेंगे या राइट हैंड यूज करेंगे। कभी यहां से पकड़ते हैं, कभी वहां से पकड़ते हैं। धीरे धीरे डेक्सटैरिटी फिक्स होती है। हम लेफ्ट हैंडेड होते हैं, कुछ बच्चे राइट हैंडेड होते हैं, है ना? और Yes, एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो होता है, द सेंस ऑफ स्पेस, राइट? हम सब कहाँ ऑपरेट करते हैं, हमें पता होता है हमें इससे टक्कर नहीं खानी, हमें पता है हमें इतनी जोर की भागना है, इससे ज्यादा जोर की भागेंगे तो हम गिर जाएंगे। वी आर कंट्रोलिंग अवर बॉडी मूवमेंट्स, राइट? हमें डायरेक्शंस पता होती है, लेफ्ट, राइट, स्ट्रेट। Spatial awareness is a very important aspect of a child's overall awareness and body control. तो वेस्टिबुलर सिस्टम क्या होता है? मूवमेंट, बैलेंस, डायरेक्शन, ओरिएंटेशन, राइट? एंड प्रोप्रियोसेप्टिव क्या होता है? जहां पे हमें ये पता है, जब आप पिक्चर्स में देख रहे हैं, आप बच्चे टायर्स के बीच में से जा रहे हैं, हम yes, बच्चों को हुला हुप्स देते हैं और उनको बोलते हैं अपनी बॉडी के अराउंड घुमाओ। उससे क्या डेवलप होता है? बच्चों की एबिलिटी टू नो कि उनको बैलेंस कैसे करना है। आपने देखा छोटा बच्चे को, आप व्हाट डू यू कॉल दैट, जो छोटे बच्चे को हम देते हैं जब वो चलना शुरू करता है? वॉकर। वॉकर वॉकर। देते हैं। और वॉकर से पहले एक ऐसा सपोर्ट वाला भी, एक रेड़ा बोलते हैं उसको हिंदी में, एक रेड़ा देते थे पुराने जमाने में, ताकि बच्चे उसको रेड़ रेड़ के चलना, सपोर्ट देते हैं ना? क्यों देते हैं? क्योंकि द वेस्टिबुलर सिस्टम इज स्टिल डेवलपिंग इन चिल्ड्रन, और वो बहुत देर तक डेवलप होता है। बट एक चीज जो हम लोग टीचर्स ज्यादा फोकस नहीं करते हैं, एंड इट इज अक्रॉस ऑल द स्कूल्स आई हैव सीन एज अर्ली एज टीचर्स, हम फ्री प्ले बोलते हैं, बट वी आर नॉट, फ्री प्ले इज इंपॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन, बट इन द फिजिकल डेवलपमेंट इस तरह की स्पेशियल अवेयरनेस एक्टिविटीज प्लान करना very important for children to have a sense of direction, sense of awareness about the space. आपने देखा है मेज होती है, एक टॉय आता है पजल का, बच्चे उसमें लेफ्ट राइट करके ऊपर नीचे मेजेस होती हैं। मेज को क्या कहते हैं हिंदी में? रास्ता। देखा है आपने? बिल्ली को यहाँ जाना है, टेढ़ी मेढ़ी रास्ते बने होते हैं, है ना? तो बच्चे को ढूंढना है कि वो कौन सा रास्ता लेके बिल्ली वहां तक पहुंचेगी। और yes, यूजुअली हम बच्चों को वो एक पजल दे देते हैं या वुडन मेज देते हैं, और बच्चा उससे उसको घुमाता रहता है। एक हुक होता है, उसको लेके उधर से ऊपर जाता है। व्हाट इज इट चाइल्ड इज ट्राइंग टू डू देयर? डायरेक्शनैलिटी। finding the direction. Yes, finding the direction, left and right. So we are going to talk more about spatial awareness. All right? I'm going to show you a small video. I hope you are able to see my screen. Are you able to see my screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Can you all see this video? It's opening. It's a very quick video. ध्यान से देखिए। आप लोग वीडियो को देख पा रहे हैं?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. That's why. क्या देख पा रहे हैं आप इसमें? Children are jumping and There taking are ball. two boys Color sorting, and madam. there is an activity. Taking ball hand. from the box and backside they are putting all balls. Turn left Yes. and right and throwing the balls. Yes. They are throwing the ball. They're taking the balls and they're throwing it and putting it back. Putting Can it you even back. see this activity? Yeah. They are running and taking ball and keeping in ring. No, there is one more thing that they're doing. Carefully देखिए. Teacher क्या कर रही है? They are just following the instruction. According to the instruction, they are doing. Ruchi, look carefully. There's no instruction. What is the teacher doing? What is she waving? Hand. Balloon. Telling the color, the He's having kids are balloon. following the instructions. He's waving a balloon. Encouraging. No, ma'am. No, no. She's ball just है ma'am, standing ball, there. ball. She's a part of the Yes, game. ma'am. Arpita? Yes, ma'am. बलून को मैम बलून पूरा से बच के आना कंसंट्रेशन है। है बच्चों उनको का टच नहीं बच्चों को क्रॉस कर बिना देना टच है। किए वो लोग जा रहे हैं वो बॉल को। ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रही है जो अगर बलून को कोई टच कर देगा तो वो Out है। आउट है, out. राइट? और टारगेट क्या है कि बच्चों को इधर से जेके वहां तक ऑब्जेक्ट्स को रख के आना है, राइट? Yes, ma'am. मेकिंग सेंस? Yes, Did you understand the activity? Yes, yes, ma'am. ma'am. Okay, let's look at this if that makes sense. He is showing right and left direction. She is giving from the hand. Make sense? Yes, ma'am. What is happening in this activity? Follow the direction. Giving the direction. Following. Children are Right, following right. teacher. Right, left, up, Right, down. left, Up and down, right, left, up wiggly and hopping. down, left and right. Yes. And let's look at one more video. What is happening in this? लिख के दिखाना है। Okay, let's move back. So, in the first activity, what you saw was a kind of second activity, obstacle course. Teacher ने obstacle means कठिनाई, परेशानी, कठिनाई या बाधा है ना, बाधा। Yes, तो ma'am. उसने बलून को इधर उधर करी थी, बच्चों को उस बलून से बचकर बॉल को इस बॉल को पॉइंट से डालना, दूसरे पॉइंट तक दूसरे point तक क्यों जाना। कर Yes, रहे थे ma'am. हम? Why do you think? First of all, was it a planned game? Planned game activity? Yes, ma'am. It's a planned game. Planned game Okay. activity. इसमें क्या ऑब्जेक्टिव था टीचर का? Concentration buildup, ma'am. Please, one person. Let me shout out the name. Arpita? Yes, ma'am. Concentration बच्चों का buildup होना और बच्चे focus रहे मैम। Very good. Very good. So you're saying concentration, focus, and also following instruction कि उनको इस यहाँ से उठा के वहां डालना है। Was there also movement, kinesthetic? Yes, ma'am. Kinesthetic development was there? Yes, ma'am. क्योंकि बच्चे एक जगह से करके भाग रहे थे, right? Yes, ma'am. Okay. Now, what was the first activity? Two boys you saw, वो जो jump कर रहे थे। Yes, ma'am. पहले सीधा ये this activity, remember you have seen this one. I'll show you once again. ये दो बच्चे क्या कर रहे हैं ये? वंदना from कोटा? मैम ये भी फोकस से ही वर्क कर रहे हैं और कोऑर्डिनेशन है इनके बीच में। Okay. Somebody raised hand. I'm sorry. Somebody raised hand. Shubhu, what are they doing? Ma'am, they are putting the same color on the same box and they are doing
वो एक ही बॉक्स में डाल रहे हैं, ना कि वो अलग अलग दोनों कलर को मिक्स कर रहे हैं। वो एक ही राइट। कलर को ट्विस्ट एंड टर्न एक्सरसाइज करके वो दूसरी तरफ डाल रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इससे क्या डेवलप, क्या एरिया ऑफ डेवलपमेंट, कौन फिजिकल सी स्किल्स फिजिकल क्या डेवलप हो रहा है? फिजिकल डेवलपमेंट मैम। फिजिकल फिजिकल डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में। Okay, be specific in physical development. What in physical development? Fine motor? Is it fine motor? Are they using their fingers? No, Yes. no, no. No. Yes, ma'am. Yes, Never ma'am. mind, it Yes, happens. ma'am. They are using their fingers and the hand for the putting the Yes, ball into hands, the other box. legs. Okay, so this is basically about grasp, right? They're Yes, trying ma'am. to hold the ball. What Ball. else? They're twisting their legs, means back Yes, and forth. They're moving their body. yeah. Please look at this. Now, look at this. Vestibular. Are they also balancing themselves? Yes. Themselves? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Are Yes, they Yes, ma'am. ma'am. also adapting to the orientation? पहले Yes, इधर ma'am. कूदना है, बॉल उठानी है, फिर उधर जाना है, बॉल गिरानी है. Is there a Yes, ma'am. kind of an balancing orientation they are doing? Yes. Yes, Yes. ma'am. Yes, Yes. ma'am. Balance Look is at the very next important, one. ma'am. Proprioceptive. Where body parts, how much? अगर वो ज्यादा जोर से बॉल को फेंकेंगे तो क्या वो बॉक्स में जाएगी या आगे भी गिर No, ma'am. सकती है? बाहर चली जाएगी। बाहर और बाहर जाएगी। चली जाएगी तो वो आउट बाहर होंगे? चली Yes, ma'am. जाएगी। यस. मैम। तो Yes, ma'am. रूल क्या है कि आपको इधर से उठाना है, उधर बॉक्स में ही जानी चाहिए, गिरनी नहीं चाहिए. सो दे आर गेटिंग एन एस्टिमेशन कि कितना फोर्स लगाना है, कितने पुश से उसको फेंकना है, कितना प्रेशर डालना है उसको कैरी करने में. राइट. एंड विजुअल सिस्टम, डिस्टेंस, डेप्थ, साइज, पोजीशन, कौन सी पोजीशन पे बैठना है, ये सिर्फ आपको जो फिजिकल डेवलपमेंट का काइनेस्थेटिक दिख रहा है, इट इज नॉट ओनली काइनेस्थेटिक लर्निंग. सिर्फ भाग नहीं रहे हैं. देयर इज थ्री मेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ योर ब्रेन दैट आर वर्किंग राइट नाउ. इसीलिए टीचर ने इन तीनों एस्पेक्ट्स को रखकर अपनी गेम प्लान करी है. राइट. आपने लास्ट एग्जाम्पल देखा था जिसमें छोटे बच्चे लाइन में खड़े थे, उसने ग्रीन और रेड येलो पड़ा था, वो ऊपर करती थी, बच्चे हेड वैसे करते थे, वो बिल्कुल नीचे करती थी, बच्चे पूरा नीचे बैठते थे. व्हाट वाज दैट एक्टिविटी? अनीता, अशोक, उसमें क्या ऑब्जेक्टिव था अनीता? मैं वो अप एंड डाउन ये सारे भी उसमें तो बच्चे वो भी सीख रहे हैं कि अप होना है, डाउन होना है, लेफ्ट होना है, राइट होना है. हम्म. सो अनीता, मुझे ये तीनों जो ऊपर लिखे हुए हैं, वेस्टिबुलर और प्रोप्रियोसेप्टिव और विजुअल, में से देख के बताइए इनमें से कौन कौन सी चीजें उस एक्टिविटी में यूज हो रही थी? मैम मूवमेंट, वेरी गुड. डायरेक्शन वेरी गुड. एंड ऑब्वियसली बैलेंस भी था मैम, बिकॉज बच्चे बैलेंस नहीं कर पाएंगे पैर में तो गिर जाएंगे, बिकॉज लेफ्ट वेरी राइट गुड. तो बैलेंस करना है बच्चों को. वेरी गुड. ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन मैम आई डोंट अंडरस्टैंड दिस वन. ओरिएंटेशन इज, मूवमेंट, आपने अपने आप को ओरिएंट किया रिस्पॉन्स करने के लिए कि मैंने मैम. जब ये एक्शन करना है तो मुझे ये करना है. तो यू आर ओके मैम. ओरिएंटिंग योर ब्रेन कि मुझे ऐसे जाना है. ओके मैम. राइट. ओके. वी आर गिविंग, मतलब उसको बता रही हूँ ब्रेन को कि मुझे एसोसिएट इधर कर रहा इधर है बच्चा, ऐसे करना. यस. या मस्कुलर मोटर रिस्पॉन्स हो रहा है. राइट. उसको ओके. कुछ आप यस देते हो, वो उसी हिसाब से रिस्पॉन्ड कर रहा है. तो उसके लिए उसको एक सेंस ऑफ ओरिएंटेशन होनी चाहिए, इंस्ट्रक्शन समझ में आनी चाहिए कि मुझे इस पे ये एक्शन करना है. मेक सेंस? मैम. ओके मैम. थैंक यू मैम. एंड विजुअल सिस्टम, पोजिशन, अपनी जगह पे पोजीशन, बैठ के करना है. राइट. हाँ, कितना ऊपर उठना है कितना नीचे, ये भी तो कर रहे थे ना
कि मतलब जब वो ऊपर बोल Yes. रही थी तो ऊपर करना, नीचे करना, तो कितना झुकना है, और भी झुकना है तो और भी झुकना है वो। Exactly. There is a constant brain response जो बच्चे कर रहे हैं। लगने को ये बड़ी फनी सी एक्सरसाइज और बड़ी सिंपल सी एक्सरसाइज है, पर एक छोटी सी एक्सरसाइज में आपने बच्चों का पूरी स्पेशियल अवेयरनेस स्किल्स जो हैं वो डेवलप करी हैं। डू यू थिंक इट इज इम्पोर्टेंट फॉर चिल्ड्रन? यस मैम। यस मैम, यस यस मैम। मैम। अगर मैं अभी आपको बोलूं अपने दोनों हाथों को, आर्म्स को स्ट्रेच कीजिए टीचर्स, राइट। अब अपने हेड पे बैलेंस कीजिए, किसी चीज को रखिए। आई हैव टेकन आउट दिस बुक, कैन यू सी अ स्मॉल कॉपी? यस और मैम। इसको वेरी गुड बैलेंस कीजिए। 2 कदम आगे चलिए या अपना हेड को आगे करवाइए, हेड को पीछे करवाइए। कुछ और सोच पा रहे हो? नहीं सोच पा रहे ना? मैम बैलेंस के ऊपर ध्यान है। एग्जैक्टली शुभू, यू डिडंट ट्राई बट यू न्यू इट इज गोना बी टफ। मैम पर ये देखिए मैम, ये ट्रांसपेरेंट है और इतना सॉफ्ट है कि वो पहले ही गिर गया। So the point I'm trying to make. So let's, on this note, let's do one activity. Okay? Are you ready? यस मैम। Yes. Okay. So I am going to, I'll just stop sharing my screen so that I can see everybody. Turn on your videos, teachers. Thank you. Lakshmi is still playing around. All right. So I am going to, this is my symbol. This is my object. मैं जिसका नाम लेकर ये जैसे जिस डायरेक्शन में इसको करूंगी और जिसका नाम लूंगी उसको वो ही फॉलो करना है, ठीक है? ओके मैम। ओके। रेडी? यस मैम। शुभू टॉप, अनीता लेफ्ट, अनीता टच ऑन योर लेफ्ट, साधना behind the back, Arpita on your nose, Lakshmi touch your ear, stop. Now मैं इसी गेम को रिपीट कर सकती हूं, asking one of you to give the further instruction. Turn left, move right. Okay. Simon says, I am Simon. जो मैं बोलूंगी आप फॉलो करोगे, right? Simon ma'am. says, touch your nose. Good Lakshmi. बट आपने मुझे देखा और कई लोगों ने अपनी ईयर टच कर लिया. Simon says, roll your hand. Simon says, pull your hair. Simon says, blink your eyes. Simon says, stretch your ears. Simon says, pinch your nose. Simon says, clap your hands. Simon says, brush your teeth. Brush your teeth. See, Anita, this is what is called orientation. Yes, ma'am. Right? Thank you That so much, आपको ma'am. उस मोमेंट पे एक्शन को फॉलो करना है या फिर Okay. आपको ऑडिटरी इनपुट को फॉलो करना है, right? आपने So you have करके to समझा always दिया मैम, mind your थैंक यू सो orientation. मच। And you know, this is my favorite activity, even in the group of adults, because this is an energizer. I call it energizer, right?
थैंक जब भी यू आप सो अपनी मच क्लास में मैम, बहुत थैंक यू। देर बोल लेते हैं, आपने नोट किया है? मैं जब भी आपको बहुत ज्यादा, कभी मुझे ऐसा लगता है मैं बोल रही हूँ, मैं कहती हूँ लेट्स डू एन एक्टिविटी, और आप एकदम सारे एनर्जाइज हो जाते हैं, आपकी अटेंशन वापस आती है। व्हाई डू वी डू दैट? राइट? अटेंशन, अटेंशन पाने ओरिएंटेशन के लिए। चाहिए, अटेंशन। Yes. Attention and also shifting your energy levels. जब हम एक चीज को बहुत देर तक प्रोसेसिंग करते हैं, ये हमारे साथ भी ऐसा होता है, ब्रेन गिव अप कर जाती है। राइट? आपका एक थ्रेशोल्ड होता है, थ्रेशोल्ड मींस हाईएस्ट लेवल, जितना मैं ले सकती हूँ। राइट? उस थ्रेशोल्ड के बाद जो होती है, अटेंशन लोअर होना शुरू हो जाती है, और बच्चों का थ्रेशोल्ड 15-20 मिनट से ज्यादा नहीं होता। जब भी आप कोई एक्टिविटी चेंज करें, या आप चाहते हैं कि अब इनको थोड़ा सा सुनना पड़ेगा, या थोड़ी देर दे हैव टू सिट एंड लिसन, ऑलवेज डू एन एनर्जाइजर विद देम, do play Simon Says with them, right? Do a quick action rhyme with them, do a transition rhyme with them, right? Clean up time, let's put our hands up, take out your shoes, come back to the mat. Okay? Very important that you do these kind of energizers with children. This helps them to come back to the focus. Make sense, teachers? Yes. Yes, ma'am. So again, what I just did, there could be lot of games that you can plan, team games. अर्पिता, साधना, अनीता, शुभु, इन तीनों को एक ही कोऑर्डिनेशन में चलना है, और बॉल्स उठानी है, फिर चल के आना है, और बॉल्स को वापस उस बिन में जाना है, और हमने इन तीनों के पैर बांधे हुए हैं एक दूसरे के साथ। Right? The Yes, children ma'am. are learning to balance. Children are getting orientation. Children are getting problem solving. So I would really request that don't underestimate the power of spatial awareness in your children. हम क्या करते हैं, खेल देते हैं। वो फ्री प्ले बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों की इमेजिनेशन के लिए, बट जब आप अपना टेबल पे आप अपना प्लानर बनाते हैं और आप प्ले लिखते हैं, आउटडोर प्लेस, मेरा मतलब है आउटडोर प्ले, आउटडोर प्ले में लिखिए फ्री प्ले और स्ट्रक्चर्ड प्ले। अगर आप फ्री प्ले करना चाहते हैं, बच्चे आप फ्री 10 minutes ऑफ फ्री प्ले एंड 10 minutes ऑफ स्पेशियल अवेयरनेस गेम्स, और आप इंटरनेट इंस्टा ढूंढेंगे, आपको इतनी सारी गेम्स मिल जाएंगी, बट आपको जो मैंने स्किल्स दिखाई हैं, आपको उनको ध्यान में रखकर अपनी एक्टिविटी को प्लान करना है। बैलेंस करना, रिस्पॉन्स करना, can you hear me, teachers? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Good. Thank you. I'm again sharing my screen, just 5 minutes more and then I'll let you go. So some of the examples of your spatial awareness activities are obstacle courses, mazes, puzzles, team games, form drawings, right? अब आप अगर सारे खड़े हो जाएं 2 मिनट के लिए, और पूर्णिमा वॉक इन अ स्क्वायर in your space. Walk as if you're following a square. आपको पता है स्क्वायर क्या होता है? Yes, ma'am. कितनी साइड्स Four होती है sided, स्क्वायर की? four sided equal. Yes. So start walking like a square. Right? Shubhu, start walking like on a triangle. Vandana, make an 8 and follow the loop of 8. All these are your form drawings. Thank you, Vandana. You are doing it for us. Really appreciate.
मूव लाइक अ लूप ऑफ 8। वंदना 8 के लूप पे चल के दिखाओ। वेरी गुड। नाउ वंदना, गिव अस इंस्ट्रक्शंस to move on the loop of 8. अगेन चल वापस से वॉक नहीं करनी नहीं, है। इंस्ट्रक्शन बनाओ, डायरेक्शंस दो, इंस्ट्रक्शन दो शुभू को। शुभू, वंदना is giving you instruction to move on a loop of 8. Follow her instruction. No, मुंह से इंस्ट्रक्शन दो वंदना। बोलो, मुंह से। मुंह से इंस्ट्रक्शन दो और शुभू करेगी। आपको एक जगह खड़े रहना है। ओके। वंदना इंस्ट्रक्शन दो। देखो कितनी प्रॉब्लम होती है अपनी इंस्ट्रक्शंस को ऑर्गेनाइज करने में। आगे गो अहेड, आगे जाना है और फिर आपको टर्न करना है, फिर आपको वापस नो, आना है। वन बाय वन। वो कैसे करेगी? पहले फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, स्टेप फॉरवर्ड। ओके। बोलो। आपको आगे जाना है, फिर आपको लेफ्ट की ओर नो आगे बढ़ना नो है। नो वंदना, आगे आओ। बोलो, शुभू को करना है आपके साथ। शुभू को इंस्ट्रक्शन दो। शुभू आगे आओ, ऐसे शुभ बोलो। और और आपको लेफ्ट की ओर आगे टर्न करना है, फिर आपको वापस राइट की ओर मुड़ करके फिर आपको लेफ्ट की ओर। Yeah. This is what is called sensor. Please, Vandana and Shubhu, thank you so much. Please sit down. आप समझ रहे हैं कि अपनी डायरेक्शंस को भी एक्सप्लेन करना, राइट? दिस इज अगेन अ हायर ऑर्डर थिंकिंग। सो मैंने क्या बोला वंदना को? आपको खड़े रहना है, आपको सिर्फ मुंह से बोलना है, आपको इंस्ट्रक्शन देना है। मैं ये भी कर सकती थी कि मैं शुभू को ब्लाइंड फोल्ड कर देती और बोलती वंदना को कि उसको बोलो कि 8 की फॉर्म में आगे जाए और बास्केट में से बॉल को ड्रॉप करे, बास्केट पे बॉल ड्रॉप करे। हम ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज प्लान कर सकते हैं छोटे बच्चों के लिए। मैंने जैसे पूर्णिमा को बोला कि वॉक ऑन अ स्क्वायर, तो स्टैंड ऑन वन पॉइंट, टेक 4 steps, 1 2 3 4। नाउ टर्न राइट, take 4 steps, 1 2 3 4, stop. Again turn right, 1 2 3 4, stop. Stop का मतलब क्या है? Corner, right? What am I trying to build here? Auditory response. I'm trying to build directions. I'm also trying to give the ability to child to follow the sense of space. कहाँ जाना है, कितना जाना है, कितने स्टेप। Do you think it is higher order thinking? यस मैम। Yes, ma'am. Yes. So I would really request all of you to, make it a part of your play, your physical activities. Free play, structured play. And in structured play, call it spatial awareness games. What will we call them, teachers? Structured play. Spatial awareness. Everybody repeat after me. Spatial awareness. Awareness. अब can you see my screen? Yes, ma'am. आपको याद होगा हमने रूटीन्स एंड रिजीम्स की बात करी थी। Yes, Yes, ma'am. ma'am. हमने बात करी थी कि लर्निंग सेंटर्स, क्वालिटी सर्कल टाइम, स्टोरीज एंड राइम, सेंसरी प्ले, ये सब पार्ट किसके हैं? रूटीन्स एंड रिजीम्स के। और रूटीन्स एंड रिजीम्स किस लिए चाहिए? वॉइस एंड चॉइस, स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटी, अनस्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज, Structured activity. चाइल्ड लेड To allow एक्टिविटीज, children टीचर लेड एक्टिविटीज, इंडिविजुअल एक्टिविटीज, ग्रुप एक्टिविटीज। and group और activity. बच्चों को एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग देने के लिए किसी ने बोला था डिसिप्लिन, राइट? बच्चों को ये पता हो, उनको एक जैसे कहते हैं सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। अब मेरा ये काम खत्म हो गया है, मुझे अपनी बुक कबर्ड में रख के आनी है। अब मेरा लंच टाइम होना है, मुझे खाना खाने के बाद डस्टर उठाना है और अपना टेबल साफ करना है और अपने टेबल मैट को वापस रख के आना है। These routines and regimes create self-directed learning. What do they create? Self, Directed learning. right.
ओके, बच्चों के अंदर सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग इज मोर इम्पॉर्टेंट, एंड ये आपकी फर्स्ट सेल्फ मैनेजमेंट स्किल होती है जो कि डिसिप्लिन ग्रेजुअली लाती है, बच्चों को खुद हैबिट फॉर्मेशन करती है ना। यस जब मैम। उनके पास एक स्ट्रक्चर होता है कि खाने के बाद टेबल टेबल को साफ करना है, टेबल मैट को जगह पे रखना है, तो ऑटोमेटिकली जब आपकी हैबिट्स फॉर्म होती हैं, आप डिसिप्लिन होते रहते हो, राइट। सो योर टास्क इज नाउ, मैं आपको प्लीज इसकी फोटो खींचिए सब अपने फोन पे। ये आपका एक टाइम टेबल है डेली। आप सब ने अपने मॉर्निंग रूटीन, सेंसरी प्ले, गार्डनिंग, क्या क्या आप करेंगे जब आपके बच्चे आ रहे हैं। फिर आपके पास सर्कल टाइम, तो मंडे को क्या सर्कल टाइम होगा, ट्यूसडे को क्या सर्कल टाइम होगा, वो सब आपने यहाँ पे डिफाइन करना है और ऐसे बना के आना है। अगर हम राइम और सॉन्ग कर रहे हैं तो कौन सी राइम्स हैं, एक्शन राइम है, ट्रांजिशन राइम है। अगर आप स्टोरी प्लान कर रहे हैं तो वो कौन सी स्टोरीज हैं। आपको कॉर्नर टाइम है, तो हमने कॉर्नर टाइम्स की बात करी थी लर्निंग सेंटर्स की, डिस्कवरी सेंटर, एक्सपेरिमेंट सेंटर, आर्ट एंड क्राफ्ट सेंटर। तो मंडे को कौन सा सेंटर आपने बनाया, ट्यूसडे को कौन सा सेंटर पे बच्चे काम कर रहे हैं, वेडनेसडे पे कौन सा सेंटर, राइट। मंडे को कौन सा सर्कल टाइम, ट्यूसडे को कौन सा सर्कल टाइम, वेंसडे को कौन सा सर्कल टाइम। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। आउटडोर प्ले, फ्री प्ले कब कितने मिनट का है, उसके बाद स्पेशल अवेयरनेस गेम कौन से 2 दिन या 3 दिन हो रही है। आपको यू ऑल हैव टू प्लान a kind of a daily planner like this. Please take a picture, and this is what your task is. Create a list of duties. You will give your daily planner और specific activities दीजिए, okay, for each day of the week. Got it, teachers? यस मैम। यस मैम। Lovely. Any questions? अर्पिता, हमें क्या करना है। मैम डेली बेसिस पे जैसे हम लोग वीक डे वाइज प्लानर रेडी करते हैं, उस टाइप से हमें 1 by 1 पॉइंट्स को स्टोरी टेलिंग करनी है, सारे पॉइंट्स को मैनेज करके और एक एक टॉपिक पे एक्टिविटी को प्लान करना है। रूटीन्स प्लान करने रूटीन हैं, अपने रूटीन्स डेली प्लान करना रूटीन्स। एवरीबडी से टुगेदर, रूटीन्स एंड रिजीम्स। है। रूटीन्स एंड मॉर्निंग Routines रूटीन, and routines. यस, रूटीन्स एंड रिजीम्स प्लान करने हैं। और हमारे रूटीन्स एंड रिजीम्स के क्या क्या पार्ट है। सबसे बड़ा पार्ट है सेंसरी प्ले, फिर क्वालिटी सर्कल टाइम, फिर लर्निंग सेंटर्स, फिर स्टोरीज, राइम्स एंड आर्ट एंड क्राफ्ट। ओके, डन टीचर्स। यस मैम। तो अब आप यही टर्म यूज करेंगे, रूटीन्स एंड रिजीम्स प्लान करने हैं। और सेंसरी प्ले आपका मॉर्निंग रूटीन का पार्ट हो सकता है। तो जब बच्चे एकदम आपके पास आएंगे, आपको ऊपर दिख रहा है मॉर्निंग रूटीन, फ्री प्ले, कॉर्नर्स टाइम, ये सब आपके एग्जाम्पल्स हैं रूटीन्स एंड रिजीम के। तो अगर मंडे को आपको आएंगे तो बच्चों का मॉर्निंग रूटीन में आप क्या डालेंगे कि वो मंडे को जब आ रहे हैं तो आप उनके लिए सेंसरी प्ले कौन सा, टेक्टाइल। फिर ट्यूसडे को वो आ रहे हैं तो उनके लिए आपने 10 मिनट का फ्री प्ले कर दिया। फिर वेडनेसडे को आ रहे हैं तो आपने उनके लिए एक म्यूजिक मूवमेंट सेंसरी प्ले प्लान किया। फिर थर्सडे को आ रहे हैं तो आपने उनके लिए वेस्टिबुलर या फिर ऑल फैक्ट्री सेंसरी प्ले या नेचर प्ले या सैंड प्ले या वाटर प्ले प्लान किया। उसके बाद जब वो क्लास के अंदर आ रहे हैं तो सर्कल टाइम, सर्कल टाइम के अंदर पहले सोशल इमोशनल, आप कैसे हो, आपने क्या किया, राइट। उसके बाद वेदर चार्ट किया, कैलेंडर किया, ये सब कुछ आपको लिखना है। मेक सेंस।
Yes, ma'am. Please take picture. Take picture of this slide कि आपको क्या करना है ताकि आपको ये सारे रूटीन्स एंड रिजीम्स याद रहे. और सेकंड इसकी पिक्चर लीजिए. ओके टीचर्स? Yes, ma'am. Okay. Any questions? No, ma'am. I'll be very happy to hear your questions though. Okay? So we'll meet you tomorrow. Bye-bye. See you, everybody. Ma'am. Okay? Tomorrow is a Saturday, ma'am. Tomorrow is Okay, last. okay. I'm not going to eat up your Saturday. Don't worry. I will not come for the session. Monday. All right. See you. Bye-bye. Take care. Have a Bye-bye. nice Bye. weekend. Thank you. Bye. Thank you. Yes, Manju, on Monday only I'll come now. I will not show my face before that. Bye-bye. See you, teachers. Bye-bye, Bye, ma'am. ma'am. Bye.